Hello everyone. Very beautiful afternoon to you all. And again, this Sunday I welcome you on episode 31 of Guest Talk with Homeopathy Heals Instagram Live. And as I'm so much excited today for session, and I'm sure you all must be very excited. Hey Homeopathy Cure, very good afternoon. So today's session is about homeopathy and cardiology, and the guest speaker for today needs no introduction. He is none other than our very own, very loved, very much admired a person, a homeopath who replies even on DM, being so occupied, and he teaches even by with the other cases, maintaining all the ethical issues. None other than our Dr. Adil Chimthanwala sir. Hey Dr. Aparna, I'm also very excited. So I would like without wasting time, I would like to invite sir. Will be here any minute. Very good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I am so good. As you can see, all the audience, the person here. Yeah. People are joining in. Yes. So before we shall start, I would like to introduce you, although Dr. Adil Chimtanwala sir needs no introduction, but still I want everybody to know that he, after obtaining his MBBS with honors from Nagpur University and DNB in internal medicine, he has done BHMS, MD and PhD in homeopathy. And again, that too with honors. He is the Secretary of National Academy of Homeopathy in India, and he is the world's first homeopathic cardiologist. He conducts postgraduate homeopathic residential school twice a year, where all the homeopaths across the world they come for the training. He has delivered lectures across the globe in cardiology, USA, Malaysia, Australia, Morocco, Dubai, South Africa, and he has published 10 books in homeopathy, and is a very regular contributor to various national and international journals. He is a recipient of Dr. Hahnemann Award for Excellence in Homeopathy and Avantika Dhanvantri Award, the prestigious one Homeoshri Powerhouse of Nagpur Award 2020, Best Young Homeopathic Scientist Award in USA, and he's also sub-editor at National Journal of Homeopathy, Mumbai. Recently, he has received an award which is a Star of Homeopathy with his father, Dr. Kasim Chimthanwala sir, at University of West London in UK. He teaches homeopathy in Australia, and he is one of the pioneers in homeopathy in agro-homeopathy or agriculture, a revolutionary concept. He is mentor and PG guide to postgraduate students by Hahnemann College of Homeopathy in UK. He conducts free health checkup camps, blood donation camp, and established around 176 clinics of students throughout the world. He is a MedX speaker too, and a very famous YouTuber, Adil Bolta hai. Around 1200 videos on various medical subjects to his credit. He practices in Mumbai on first Saturday, Sunday since 5 years, and has another clinic in Bangalore where he visits in 3 months. His regular OPD and IPD in Nagpur, where he has hospital and 2 clinics centrally located in the city, and he even attends patients online across the country and the globe. He is a Rotarian since 13 years. Again, very warm welcome to you, sir. Thank you very much. And it's been a very long time that I've come online on your channel. I mean, someone else's channel. Normally, मैं मेरे ही इसमें रहता हूँ और टाइम नहीं मिलता actually. But आज Sunday था, so I said, चलो let's talk with you and inspire your audience to do something special, something better in homeopathy. Okay, I request all the audience drop your all the questions you want to ask Dr. Adil sir. But I'll start with my question.
as I've given your introduction and we all know that you have done your MBBS, you have done your internal medicine MD, then why homeopathy? Well, uh, few people know that we are in homeopathy. Like as a family, we are in homeopathy since past 112 years. My great grandfather established the first clinic in 1912 in Nagpur, and तब से लेके आज तक I'm the fourth generation of homeopath. My great grandfather, grandfather, father, and now myself. And since my father's time, we have all done MBBS, MD. So वही था कि भाई first तो पहले MBBS करना चाहिए, because grounding हमारे time पे the standard of colleges was not that good, homeopathy colleges. So unless until you have a full knowledge of the entire system, तब तक it's very difficult कि you can practice any other system medicine. So I entered into MBBS. Luckily, अच्छे marks से 12 standard MBBS, then DNB medicine. Now, what happened was, I've been seeing हमारा hospital शुरू से है. My mother is a homeopathic gynecologist and obstetrician. So pre-op, post-op, deliveries and all we did by homeopathy, and we still been doing by homeopathy. My father has been practicing, and he's a legend in homeopathy himself. And cancer specialist बहुत ज़्यादा था. When MBBS था तो okay, ठीक है, homeopathy was one of the subjects. But क्या हुआ कि when I was doing my MD, DNB medicine, my first posting was in ICCU, and वहाँ पर around 23 different types of cases. ICCU के बाद and the ward जो भी था, एक female ward था मेरा, तो 23 different types of cases which were absolutely not treatable by any methods. तो क्या करना है, patient admit ward में. So I took my permission from the head of the department and said, can we try homeopathy? तो बोले yes, you can try. ट्राई करने में क्या है, मेडिकल कॉलेज तो है. तो ठीक है, we tried, started, and धीरे patients started improving. So in front of me, that was evidence-based homeopathy. Because once you go into MBBS and MD ना, तो एक पूरा framework ऐसे आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ना रहे. Allopathy is the best. बाकी सब नीचे है, बाकी सब है ही नहीं, existence ही नहीं, बस medicine means allopathy. तो वो धारणा से हम लोग ट्रेन हुए थे, but still homeopathy देख के actually when you see your parents practicing and you practicing, बहुत फर्क पड़ जाता है. तो same धीरे we started, and 23 cases actually came out, responded extremely well, much beyond my imagination. फिर बस तब से तो था कि बस होम्योपैथी करना है. एक एलोपैथी ठीक है, डिग्री बराबर, बट होम्योपैथी करना है, और होम्योपैथी हार्ट के अंदर ही करना है. तब से था दिल की सेवा आदिल से, मेरा टैगलाइन है, वो हैशटैग है, दिल की सेवा आदिल से. So then homeopathy, then I took my admission in BHMS also, and फिर धीरे वो प्रोसेस होते गया. Then homeopathy cardiology करना है, बस ये. This was a short journey. Why homeopathy and why homeopathy cardiology? Okay. So my next question is those 23 patients were the inspiration that why you have chosen cardiology after homeopathy, or there is something else? नहीं. Of these 23 cases, about 14 or 15 cases were severe left ventricular failure and different types of cardiac cases. तो वो तो था ही, and cardiology, I used to basically like cardiology right from my very beginning. डॉक्टर तो बनना था, वो पक्का ही था, और उसके अंदर भी कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, वो भी पक्का था, from my 12th standard itself. So that was very clear. Homeopathic cardiology came into action when I saw that homeopathy is acted tremendously well, and this is an area which is unexplored, and you need 2 degrees. You need to understand cardiology if you want to practice in ICCU. ऐसे बोर्ड में नाम लिख देना easy है, and actually practice करना, because there has been no literature. मेरे पहले कोई literature है ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं practice. एक क्लार्क्स की छोटी सी बुक है होम्योपैथी पे on cardiology. छोटे booklets actually, 4-5 pages, 10 pages के cases. And when you actually want to practice, you need a lot of literature and a lot of guidance, because बीच में अटक जाते हैं. ICCU के अंदर होम्योपैथी प्लस एलोपैथी प्रैक्टिस करना. No, being an allopathy, it is very tempting to use drugs also, ना. तो वो सबको बचाते हुए, in fact, I did not open my clinic
जब मैंने क्लिनिक इनॉग्रेशन किया था, इनॉग्रेशन नहीं किया, मैं बोला ऐसे ही बैठ जाते, पता नहीं शायद चला नहीं तो होम्योपैथी कार्डियोलॉजी लिख तो दिया, चला नहीं, जनरल होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड आई हैड नेवर सैट एम्प्टी, बिकॉज हमारे यहाँ ऑलवेज मेडिकल कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे पेशेंट्स, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट, सब जगह बहुत सारे पेशेंट. आई एम द ओनली चाइल्ड, नो ब्रदर्स नो सिस्टर्स. तो बट माय फादर सेड ओनली वन थिंग, क्या करना है तो होम्योपैथी कार्डियोलॉजी करना, नहीं तो नहीं कर. देन डोंट, गलत नहीं करना है तो फिर फुल फ्लेजेड ओनली होम्योपैथी कार्डियोलॉजी. यानी फिर हमारे पास पेशेंट आए अस्थमा के, तो आई टू रिफर कि भाई अस्थमा तो मैं ट्रीट नहीं कर सकता, कार्डियोलॉजी का ही नहीं केस. सो व्हाट हैपेंड वाज, I started my clinic in 2001 and 3-4 महीने तो ऐसे ही बैठा था खाली, बिकॉज कोई पेशेंट, कार्डियक पेशेंट आता भी था तो कीलॉइड के लिए आता था, सब मेरा बाईपास सर्जरी हो कीलॉइड हो गया. अब कीलॉइड के लिए नहीं, कार्डियक के लिए आओ तो ठीक. तो फिर क्या करना क्या. एंड देन वन डे अ जेंटलमैन केम, बोले कि आई वांट कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट फ्रॉम यू. आई वाज वेरी हैप्पी. तो चलो एक जन ने तो विश्वास किया. सो ही हैपेंड टू बी उन्होंने एंजियोग्राफी बताया, बोले ब्लॉकेजेस है, मुझे बाईपास नहीं कराना है, आप कर सकते हो तो देखो. ठीक है, आई सेड ओके. धीरे धीरे स्टार्ट किया, जितना आता था उस टाइम पे स्टार्ट किया. एंड स्लोली सिम्टोमेटिकली विद इन 1-2 months ही स्टार्ट इम्प्रूविंग. फर्स्ट मंथ हो गया, सेकंड मंथ हो गया, थर्ड मंथ हो गया, पर 6-7 महीने के बाद he came with his son, no, his nephew, and that nephew happened to be my professor of medicine, जिनको होम्योपैथी पे विश्वास बिल्कुल नहीं था. बोले सर आप, अरे आई कुड नॉट हैव गेस्ड. बोले आदिल, ही इज माय अंकल एंड ये हमने एंजियोग्राफी कराया है, तेरी ट्रीटमेंट के अंदर है बोले 7 महीने से. तो एंड द प्लाक्स हैड डिक्रीज्ड ट्रेमेंडसली. तो तब बोले, एंड दिस जेंटलमैन, बोले ये आदमी ने किया है. तो उसके बाद से बस देयर वाज नो लुकिंग बैक. इनफैक्ट आई कुड हैव कॉल्ड एनीवन टू इनॉग्रेट माय क्लिनिक. आई सेड नहीं, दिस आदमी ने मेरे को पहला विश्वास किया है, यही मेरे इनॉग्रेट करेगा. एंड देन ऑफिशियल इनॉग्रेशन क्लिनिक वाज देयर. बस दैट वाज देयर. उस दिन से लेके आज तक आई हैड नेवर टू लुक बैक. एंड देन वी चालू किया था विद इस्केमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, अरिथमिया, congestive cardiac failures, anything you name it with cardiology, and वो हो गया. So that was a very very big inspiration कि भाई मैं कर सकता हूँ, चलो हो सकता है, possible है. Failures भी बहुत आते हैं, not all successes, but then we learn. And I've published a book, textbook of homeopathic cardiology, textbook है वो, पूरे experiences on different types of fields. Because we have, for example, Matra Medica, Lacus is an excellent drug for heart disease. बस इतना लिख के छोड़ दिया. अरे भाई कौन सी हार्ट डिजीज, कैसे सेंसेशन से बात चलता है क्या, ऐसा थोड़ी चलता है अभी. When you want, you have to have objective symptoms as well. For example, SpO2 बढ़ाना है, अभी एक पेशेंट है SpO2 बढ़ाना है, आपको कहाँ का सेंसेशन, सेम ही सिम्टम रहेंगे, कॉमन सिम्टम, ब्रेथलेसनेस रहेगा, साइनोसिस रहेगा, एंड एट द मोस्ट कफ रहेगा. तो उसके लिए तो रेपिटाइज करोगे तो एक्यूट सिम्टम्स बहुत सारे आते हैं. तो अपने यहाँ ये ड्रग्स है ही नहीं, सिम्टम्स है ही नहीं, रूब्रिक्स है ही नहीं. एंड कार्डियोलॉजी में इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाना है, सिम्टम्स कोई खास नहीं है सब, बट पंपिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस बिलो 30%, हार्ट इज फेल्ड, आपके पास दवा है क्या. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नॉट दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू मेनी मेनी थिंग्स. सो वो दे ऑल नीडेड टू बी डेवलप्ड. सो objective symptoms are as important and they should be a part of repertory, because nowadays lots and lots of people are working in ICCUs, allopathic ICCUs. भाई आप BHMS कर रहे हो, एलोपैथिक ICCU में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी काम कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट यूज होम्योपैथी. बट कैसे यूज करेंगे, सिम्टम रेपिटाइज करना आता नहीं इतना जल्दी, और वो तो करेक्ट रेमेडी करेंगे तो क्या करेंगे, सेम वो कार्बोवेज, आर्सेनिक, एकोनाइट, नैकेसिस, नाजा वही आएंगी घूम फिर के, कैक्टस, ऐसा थोड़ी है. So lot of work has been done, lot of studies we did, and God has been kind. अभी तक तो failures के साथ successes भी इतने ही मिले, and that's why the journey has continued. Okay, my next question is, sir, how do you manage the knowledge of allopathy and homeopathy? Because allopathic doctors have been groomed to give their only medicine. So how you manage all this? The moment I wanted to do homeopathy, so again, my parents told me one thing, okay, if you want to practice homeopathy, you have to practice the philosophy of homeopathy.
शक्कर की गोली देना इज नॉट होम्योपैथी, बेलेडोना ब्राइना देना इज नॉट होम्योपैथी. होम्योपैथी इज इफ यू प्रैक्टिस द फिलोसफी ऑफ होम्योपैथी. एक, और अगर फिलोसफी को एक चीज आप धारणा अडॉप्ट करते हो, you cannot have a mixture of, you can have, जैसे for example I have knowledge of Ayurveda, I have knowledge of many things, acupuncture, Reiki and all, सब चीज है मेरे को knowledge, but that does not mean कि mix कर देंगे उसको. Knowledge रखना एक बात है and philosophy को, सिद्धांत को practice करना दूसरी बात है. And फिर पूरे के पूरे, तो when I was in doing my DME medicine and I could have done DM card also, आगे भी बढ़ सकता था, but then फिर बहुत ज्यादा वो एलोपैथिक knowledge रखा है, knowledge of the entire body, of the physiology, anatomy, basics of ये, वो तो ऐसी भी जरूरत है. एंड होम्योपैथी को बाकी रखते हुए, फिलोसफी को बाकी रखते हुए अपन ने उसको प्रैक्टिस किया है. सो इनफैक्ट एलोपैथी नॉलेज हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी रादर देन डिमोटिंग माय. एंड फिलोसफी अगर एक बार करना ही है प्रैक्टिस वैसा, तो फिर क्या बात है, फिर कोई दूसरी चीज बीच में आती है. ओके सर, मैं पूछना चाहूंगी, कोई आप अपना इनिशियल डेज का कोई मेमोरेबल कार्डियक केस डिस्कस करें दैट यू हैव ट्रीटेड विद होम्योपैथी. नाउ अगेन मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ. ये जो फर्स्ट केस था ना, ये तो एक बहुत बड़ा था. उसी तरह से एक सेकंड आईपीडी केसेस. अब वो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स लाइक कार्डियोलॉजी, तो आईपीडी रखना जरूरी. तो प्रॉब्लम क्या था आईपीडी के अंदर के हमारी जो सिस्टर्स थी, उनको कुछ होम्योपैथी के बारे में समझता नहीं था. तो बट अभी वो माय मदर इज गायनेकोलॉजिस्ट, तो उनकी सिस्टर्स जो है उनको सब ये समझता है, कॉलोफाइलम, पल्सिटला, ये सब देना. कार्डियोलॉजी का नहीं समझता ना. मैं अकेला कितना करूंगा. आई कैन नॉट बी 24/7 इन आईसीयू. अच्छा, वैसा ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए कि भाई सर ये ब्रायने का सिम्टम आ रहा है, अभी कोका बंद करके ब्रायने चालू करेगा, ये बताने वाला चाहिए ना. जैसे एलोपैथी के अंदर, सर हमने पेशेंट आया है, एस्पिरिन सॉर्बिट्रेट दे दिया चेस्ट पेन का, अभी क्या करना आगे, ईसीजी कर लिया है, बेसिक्स हो गया. सो देन द स्पेशलिस्ट एंटर्स एंड मैनेजेस द केस. मेरा ऐसा तो था ही नहीं, मैं किसको ट्रेन करूं. तो इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम आईसीयू बनाना. तो व्हाट आई डिड वाज I started joining other ICCUs and they welcomed it. In fact, बहुत ये हुआ कि one multi-specialty hospital had just opened. And it was a booming multi-specialty hospital in Nagpur. तो उनके जो मेन ओनर है, वो आए थे एंड एज ए पेशेंट बन के आए. एंड तब मुझे हार्डली 1-2 साल ही हुए थे प्रैक्टिस करने को. 2004 की बात है. तो 2001 में प्रैक्टिस किया, 2004 में अपने छोटी सी क्लिनिक में प्रैक्टिस करता था. तब तक आईपीडी वाला हिम्मत नहीं थी कि करूं कि नहीं, बिकॉज लीगल इश्यूज आ जाते ना. एंड देन आई डोंट वांट मिक्सचर कि एलोपैथी भी कर रहे, होम्योपैथी भी कर रहे. ये तो था ही नहीं. करना है तो होम्योपैथी करना है, तो नहीं करना, ऐसा था. देन व्हाट टू डू, क्या करना. तो वो ऊपर वाले ने उनको भेजा एज अ पेशेंट एंड ही स्टार्टेड आस्किंग माय अदर पेशेंट्स इन द ओपीडी, ये डॉक्टर कैसा है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये सब. आई कुड हियर इट, मतलब मुझे पता था. देन ही केम, ही एक्टेड एज अ पेशेंट, पूरा हिस्ट्री जब दिया, वो सब किया. एंड बोले मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, और मुझे आप होम्योपैथी कराना है. ठीक है, सब वो लेके आई गिव हिम होम्योपैथी. 2.5 months, 3 months, and I am very strict with my patients. When I take up the case, it has to be according to me and not according to you. चलाओ वाला सिस्टम नहीं चलता. जैसा है वैसे ही. अगर आप सडनली बंद कर देंगे या एलोपैथी चालू कर देंगे या कुछ भी बिना मुझे पूछे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट whoever the patient may be. तो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना करके ही एक्सपीरियंस्ड. एंड देन वन डे केम, डॉक्टर आई वांट टू इनवाइट यू टू माय हॉस्पिटल. आई सेड आर यू डॉक्टर. अभी तक तो नहीं था, अभी तक नहीं, पूरी हिस्ट्री में तो अभी तक डॉक्टर का नहीं. बोले मेरा हॉस्पिटल है, आप आएंगे. आई सेड ठीक है सर, कौन सा हॉस्पिटल है आपका. And he took the name. I said, a multi-specialty allopathic hospital. अब जब वहाँ पर क्या है कि the director cannot appoint you directly. You have to take the consent of 30 allopathic doctors working there. उन्होंने हाँ बोला तो फिर आप अपॉइंट कर सकते. वो वहाँ का रूल है, पता नहीं. Everyone said yes. I said वाह, इतना वेलकम तो मुझे कभी मिला ही नहीं. आई सेड चलो
अभी now then we started and they offered me 5 beds for ICU. बोले ये this is your ICU. We'll give you staff, we'll give everything, सब कुछ. But आप अपने मन से दवा नहीं दे सकते. आपको प्रिस्क्राइब करना है और हमारी सिस्टर दवा देगी. आपको स्टॉक रखना है, रख सकते हैं. ये जैसे कंसल्टेंट होता है कि भाई आप प्रिस्क्राइब करो. अच्छा ठीक है, ये तो और अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी. I had to be very very strong in that कि मिक्स कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. So we started and धीरे धीरे, so that my first case. So first case was a HIV patient who was discarded because HIV covered, and this man had got severe rheumatic valvular heart disease, severe mitral regurgitation, और mitral regurgitation के साथ उसको LVF था, ejection fraction was very less. तो बेचारा ऐसी भी वो डाउन था पेशेंट. नो वन वाज रेडी टू ट्रीट हिम बिकॉज ऑफ HIV. तो बोले चलो डॉक्टर आदिल के पास भेज दो, एज अ टेस्ट केस भेजा कि भाई ये क्या कर सकता है आदमी. ठीक है, मैं बोला चलो, हमको क्या प्रॉब्लम है. एंड उस टाइम पे क्या है कि मेरे को छोटी छोटी रेमेडीज की इतनी ज्ञान नहीं था कि स्टोफेंथस एंड बड़े बड़े रेमेडीज डिजिटालिस है या फिर सल्फर, रस्टॉक्स, जो रूटीन मेडिसिन है. वो छोटी छोटी मेडिसिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना. तो वो उस टाइम पे आता नहीं था, इन्हें उतना यूज ही नहीं करते थे कभी, एंड उतना पढ़ा भी नहीं था. सो ठीक है, वी स्टार्टेड डिजिटालिस एंड डिजिटालिस डिड नॉट कुछ वर्क, कुछ पेशेंट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था. सो एक जने टॉन्ट मारा, और कर ले. ठीक है, कर ले, तो करना तो है, टॉन्ट मारो के कुछ भी मारो. फिर आके आई डिस्कस द केस कि भाई ये सिम्टम्स है, अब सिम्टम्स पे रेपिटाइज भी कर रहा हूं मैं, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा. वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? तो देन द कंसेप्ट केम कि भाई व्हाई नॉट स्टार्ट विद दोज रेमेडीज व्हिच आर रिटन इन मैथमेटिका बट नॉट इन रेपिटाइज. हर केस को रेपिटाइज करना जरूरी नहीं है. ठीक है भैया. तो तब स्टोफेंथस पहला आया. बोले भाई स्टोफेंथस यूज करूं क्या? कभी खींच नहीं यूज. तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. ठीक है, यूज करेंगे. तो स्टोफेंथस तो मदर टिंचर में यूज करते हैं. नहीं, मदर टिंचर में पोटेंसी में यूज करेंगे. ठीक है. एंड दैट वाज अ टाइम. It took us 18 days. The patient was admitted with us for about 25 days. 18 दिन के अंदर धीरे 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 सिम्टम्स पूरे गए. पहली बार लगा कि चलो भाई अब एडमिटेड पेशेंट जरा हाँ हाँ बोले. रोज सुबह जाओ राउंड को, सुबह शाम, हाँ डॉक्टर साहब अच्छा है यार, अच्छा है. अभी फिर अच्छा तो पेशेंट बोल रहा फीलिंग ऑफ वेलबींग. तो हमारे उसमें था होम्योपैथी में, फीलिंग ऑफ वेलबींग आ गया मतलब बहुत अच्छा. अब वो पंपिंग कैपेसिटी तो बढ़ती नहीं है, पैथोलॉजिकल ज्यादा नहीं है. फिर हमने इको कराया. This gentleman had ejection fraction of only 13%. It came to 22%. अब तो फिर वो बोला, and then वो मेरा भगत बन गया. जितने पेशेंट थे उसके आजू बाजू सबको अरे अरे होम्योपैथी लो. बस फिर that case I cannot forget only. And coincidentally देखो उनका, he had a family of 200 people. गांव से जाता था और पूरे के पूरे तकदीर से 200 जन को कोई ना कोई कार्डियक की बीमारी थी. सबको पकड़ पकड़ के मैंने लाया. तो मेरी पेशेंट तो उसने अकेले आदमी ने मेरे प्रैक्टिस बढ़ा दिया 200 पेशेंट का. बस that memorable case. He lived with us for another 16 years and he expired in 2017-2018 with an accident, not because of HIV, nor I treated him with AIDS also. He had already gone for AIDS. AIDS का पेशेंट बन गया था HIV से AIDS में. एंड तब भी इतने पेशेंट साल से. उसकी वाइफ, she was also positive, she was also treated, she also had rheumatic heart disease. बताओ कोइंसिडेंस कितना ज्यादा. बच्चे दो लड़कियां, दोनों का RHD. मतलब तो खानदानी लेके आए क्या? RHD कहाँ से आए? एक्वायर्ड डिजीज है वो. बट फिर वो हुआ. तो दैट माय मोस्ट मेमोरेबल केस. ऐसे लोग जिन्होंने कभी मुझ पे पहला विश्वास किया एंड होम्योपैथी पे विश्वास किया, एंड दे रिफ्यूज टू टेक एलोपैथी, बट दे कैन. They could ask me, डॉक्टर साहब आपके पास तो डबल डिग्री है, आप एलोपैथी पे चालू रखो ना, एलोपैथी भी दो ना. बट उन्होंने नहीं किया. बस वो मेमोरेबल. फिर तो बहुत सारे केसेस है मेमोरेबल, बट ये केस आप वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे. Mashallah, very nice. So there's one question from the audience. When your next cardiac seminar is going to cardiac seminar was a huge hit. तो अभी probably in January हम लोग वापस 4 days 5 days का कार्डियोलॉजी सेमिनार 3 दिन का रखने वाले हैं.
अब हो सके तो लाइव रखूंगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन, अब जैसे सिचुएशन आता है, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट हमारा जो विंटर स्कूल है, तो हम लोग समर स्कूल एंड विंटर स्कूल साल में 2 बार कंडक्ट करते हैं। सो दिस विंटर स्कूल मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी ऑफलाइन, बट लेट्स सी गवर्नमेंट कैसा रूल इशू करते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू ट्रेन होम्योपैथ्स, टू सी एक्चुअल पेशेंट के साथ बात कर सकते हैं सब। यू कैन सी द रिपोर्ट्स पहले बाद में, एंड आई एम वेरी ओपन टू मैं मेरे पास नहीं रखता मेरे प्रिस्क्रिप्शंस, पेशेंट को ही दे देता, उनके पास उनकी फाइल रहती है, क्यों मैंने सिलेक्ट किया दवा रेपेटाइजिन सब उनके पास ही रहता है। तो you can actually they can go to any other place and get themselves. This is the ultimate test of your integrity कि आप कुछ गड़बड़ करके नहीं कर रहे। और मेडिसिन भी आपको बाहर से लेने की रहती है, तो मेरे पास से कोई फर्क पड़ता नहीं, आप मेरे पास से लो, लेना है तो लो, नहीं तो आप बाहर से ले लो। और एसएल फैसल वाला हिसाब हमारा रहता नहीं, लिया तो दिया, और मुझे एसएल देना है तो बोल देता कि मैं दे रहा हूँ प्लेसिबो, तो पेशेंट भी बोलते सर सही वाला दवा दो ना हमको। ओके सर, आपको क्या पसंद है वैसे, ऑनलाइन स्कूल या ऑफलाइन स्कूल? ऑफलाइन। आपका क्या पसंद? ऑफलाइन। ऑफलाइन में देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी टॉट, बोल के नहीं सिखा सकते आपको, माहौल में रह के। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर माँ सिर्फ बच्चे को यूट्रस में रखती है, माहौल देती है, बढ़ता वो खुद ही है। उसी तरह से हम लोग माहौल देते हैं, माहौल में आपको खुद को बढ़ना पड़ता है। एवरीथिंग कैन नॉट बी टॉट बाय एक्शंस, बाय वर्ड्स, हाउ यू आर टॉक टू द पेशेंट, क्या बात करते हैं हम, क्यों भाषा बात करते हैं, हिस्ट्री ऐसी क्यों लेते हैं, रेपिटाइजेशन कब करना, कैसे करना, फास्ट कब करना, स्लो कब करना, बहुत सारी चीज है, डोजेज कैसे डिसाइड करना, फॉलो अप कैसे करना, हर चीज सिखाया नहीं जाता, वो आप वहां रह के ही सीखते हो। मैं कितना भी बोलूं कि आप क्या बोलते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट मैनेज करो, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, कितने भी लेक्चर्स देखोगे, वो होता ही नहीं, वो गट्स ही नहीं आती। इट इज लाइक राइडिंग अ साइकिल। मैं 50-100 दिन देख रहा हूँ कि साइकिल कैसे चलाना, टेक्निक सीखा, आज जब तक मैं चलाऊंगा नहीं और गिरूंगा नहीं, तब तक वो साइकिल आएगी नहीं। सेम विथ होम्योपैथी यानी एनी सेंस ऑफ माइंड, नॉट ओनली कार्डियोलॉजी, यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस, मेक मिस्टेक्स, बहुत बार स्पॉइल द केस, लर्न, ठीक खुद करना पड़ता है, और फिर वो सीखेंगे, फिर वो हमेशा दिमाग में रहता है। उसी तरह से मैथमेटिक्स भी सीखी जाती है। There's another question from audience. Sir, please tell us about 3 months internship program. 3 months internship program is probably 2022 के अंदर we start in January, February and March. It's initially अभी internship हम लोग यहाँ रखते हैं, and जैसे regular internship होती है morning से लेकर रात तक, वो पूरा रहता है, hospital working सभी कुछ है। So probably in January we will start, and बस हम लोग वो थर्ड वेव का ही रुके थे, अभी थर्ड वेव कुछ लगता तो नहीं है, लकीली कुछ आने वाला है। Moment legally we are clear कि भाई once we get green signal from the government कि भाई you can collect people and make them stay, we are ready. Okay. Coming up to the next question, sir, please tell your count on homeopathy in ICU practices. See, तो वही है, बहुत लोग क्या है, अभी बहुत सारे बच्चे आजकल आईसीयू में प्रैक्टिस करते हैं, सो दे थिंक कि हम आईसीयू के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो हमको सब कुछ आ गया, 5 साल 6 साल आप प्रैक्टिस करते हो, हमको सब कुछ आ गया। बट यू डोंट रियलाइज कि इन द आईसीयू यू आर अंडर समवन, आप खुद कभी डिसीजंस नहीं लेते। मशीन्स को चलाना एक बात है कि भाई वेंटिलेटर लगाना आ गया, ट्यूब डालना आ गया, सेंट्रल लाइन देना, वेन में क्या बोलते हैं वेनिसेक्शन आ गया, सेंट्रल लाइन आ गया, वो आना एक बात है, दे आर स्किल्स, दैट्स वेरी गुड। बट ICCU practice is all about making decisions and quick decisions, fast decisions, correct decisions as regard, because सबसे important क्या है कि ICCU के अंदर you have to select drugs or prescriptions on state of disposition, जो for example 210 211 जो है state of disposition and mind, आपके पास symptoms का टाइम नहीं रहता है, और सिम्टम्स लेने गए और रेपिटाइज करने गए तो कम से कम 15-20 ड्रग्स आ जाएंगे, अब उसमें से सिलेक्ट करते बैठेंगे, अल्टीमेटली इट कम्स टू मैथमेटिक्स ओनली। सो स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए हम लोग ने प्रोटोकॉल्स बनाया, आई मेड सो मेनी प्रोटोकॉल्स हाउ टू, सो दैट यंग पीपल कैन, अच्छा इतने 3-4 सिम्टम्स देख लो, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, एंड सिलेक्ट द ड्रग, पोटेंसी इज वेरी इजी। सो स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन, अगर इफ यू डोंट ट्रेन योरसेल्फ to observe
an arsenic patient, an acute arsenic patient, or an Econet patient, or a Carboveg patient, और से China patient, तब तक वो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते. जब खुद आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, so you are not under someone, your decisions are final. Second, you are patient. अगर आपको रिलीफ देना या आपको ये देना जरूरी है, you have got no choice, and you have to give objective, मतलब पेपर पे भी आना चाहिए. अगर मैं बोल रहा हूँ मैं को कोलेस्ट्रॉल में कम कर सकता हूँ जो भी वजह से इतने दिन में, तो इतने दिन में कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, सिग्निफिकेंट कम होना चाहिए, 2-4 पॉइंट नहीं. लाइकवाइज मतलब एग्जाम्पल सभी से. सो जवाबदारी आ जाती है. इसीलिए whenever you are training in ICCU, so train homeopathically also. Give homeopathic drugs. Fail, अरे सर ये तो काम ही नहीं करती, ये पोटेंसी में काम नहीं करती, ये स्केल में काम ही नहीं कर सकती. It is not only selection of collect drugs, it is also कितनी बार रिपीट करना, कौन सी पोटेंसी में देना, कौन से स्केल में देना. Now I am comfortable with LM scale, but that does not mean that I don't use centesimal scale or decimal scale or mother tinctures. You are a practitioner and you have to be versatile practitioner. जहां जिसकी जरूरत है वैसा देना. और कई बार इतना टेम्पटिंग होता है कि चलो मिक्स करके दे दो, रोस्टॉक्सोब्राइन दे दो, एग्जांपल दे रहा मैं, होता है, इट इज नॉट रॉन्ग. तो इससे भी गुजरना पड़ता है. क्या सिंगल दे के तो देखते हैं, स्पॉन्जा की खांसी लग रही है, स्पॉन्जा दे के तो देखते, नहीं काम कर रहे सब, पोटेंसी बढ़ा के देखते, इंस्टेड ऑफ अबैंडनिंग स्पॉन्जा एंड शिफ्टिंग टू सम अदर ड्रग. खांसी लग रही है, 100 है अपीयरेंस, हमने पढ़ा है ना, नाइट एग्रीवेशन, लाइन डाउन एग्रीवेशन है, और क्या चाहिए स्पॉन्जा के लिए, टॉकिंग वॉकिंग एग्रीवेशन है ना, तो है पूरे स्पॉन्जा, दे दो. 1 ml काम कर रहा है, गिव 10 ml, गिव 50 ml, गिव CM एंड डोंट अबैंडन. तो आईसीसीयू के अंदर प्रैक्टिस के अंदर होम्योपैथी वंस यू स्टार्ट यूजिंग ना, एलोपैथी छोड़ देंगे. जैसे मुझे आज की याद ही नहीं आता एलोपैथिक ड्रग्स, बस जस्ट इमेजिन डीएनपी मेडिसिन को याद मेरे को देखना पड़ता है यार ये ड्रग किसके लिए काम में आता था, क्योंकि होम्योपैथी हर एक्यूट के अंदर कुछ भी हो, वो कभी यूज ही नहीं किया. 20 साल हो गए ना, 25 साल हो गए, सिर्फ पढ़ा था एलोपैथी है, तो वो हंसेगा कि साहब क्या एमडी हो गया आपको मालूम नहीं है. तो हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो एलोपैथी जरूरत ही नहीं पड़ती. प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती. तो जरूरत आप ऐसी रखो कि, एंड मटेरिया मेडिका शुड बी योर मटेरिया मेडिका. आप कोई भी एक बुक लो ना, नो बुक इज गुड और बैड, रेपर्टरी इज योर रेपर्टरी, यू हैव टू डेवलप ऑन दैट. कि आज हमने एक केस देखा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है फॉर एग्जांपल, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हैज गॉट नो सिम्पटम्स बेसिकली, पीपीएच, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन. तो उसके लिए यार सर ने ये ड्रग यूज किया है फॉर एग्जांपल, या फिर इस पे लिखा है, तो सही में आपको यूज करके देखना चाहिए. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप यूज करोगे, अलग अलग पोटेंसी में यूज करोगे, देन यू कैन कम टू नो मदर टिंचर कौन सी यूज करना चाहिए, पोटेंसी कौन सी, हाई, लो, मॉडरेट. तो ये आईसीसीयू प्रैक्टिस इज रियली गुड, बट उसके लिए धैर्य, पेशेंस खुद को रखना पड़ता है, और डर बहुत बड़ी चीज है. हिम्मत आ गई ना तो बहुत सारी चीज काम हो जाता है. एंड देन slowly and steadily things work. So ICCU practice is a dedicated practice and it needs a team work. उसके लिए एक टीम भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहां आपको पूछना ही पड़ता है सब क्या करूं, सामने ब्लैंक ही दिखता है, इतना देने के बाद तो कुछ काम ही नहीं कर रहा. डोंट कीप ऑन रिफरिंग पेशेंट्स. रिफरल इज वेरी इजी, कि हमसे काम नहीं कर रहा, चल तुम दूसरा ले लो. ऐसा तो हार जाएंगे, कितने पेशेंट रिफर करते बैठेंगे, बस रिफर ही करते बैठेंगे क्या खुद को लेके. But then have a team of discussion for those people who can help you at the last moment. रात 2 बजे भी फोन करके पूछे सर ऐसा क्या करना पड़ता है, ये नहीं ऐसा करो, एक छोटा सा आइडिया दे दो, एक थॉट्स चेंज कर दो. अरे यार मैं एग्जांपल देता हूँ. एक पेशेंट है who is taking for example say ACE inhibitors. ठीक है, ACE inhibitors a drug which is given in heart failure and उसकी पेशेंट को खांसी बहुत है. अब वो हार्ट फेलियर के लिए दवा है और बीपी के लिए भी दवा है, सेम ड्रग, एनालैपरल फॉर एग्जांपल, एनालैपरल करके ड्रग है. अब ये बंदे को, ये पेशेंट एडमिट है, 45 इयर्स ओल्ड मेल, और वो एनालैपरल चालू है. ठीक है, उसको खांसी बहुत आ रही है. खांसी इज बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर का एक सिम्टम है खांसी भी, तो उसको बहुत खांसी आ रही है. अब हमने दवा सिलेक्ट किया मेफाइटिस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेफाइटिस हमने सिलेक्ट किया सिम्टम.
देते जा रहे एफआईटी सर, सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे से देते जा रहे। 1M का 10M हो गया, 10M का 50M हो गया, और काम नहीं करे तो हमने 0/3 चालू कर दिया। फिर भी कम तो ही खांसी, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया? इफ यू सी द केस, एनालैप्रिल वाज द कॉज। जब तक एनालैप्रिल चालू है तब तक वो खांसी जाएगी ही नहीं, आप कितनी दवा देते बैठो। एनालैप्रिल वाज ड्रग गिवन इन एलोपैथी फॉर हार्ट फेलियर, दैट्स करेक्ट, बट अब बिकॉज खांसी उसको डेवलप हो गई तो तुम्हारी दवा काम नहीं करेगी, बिकॉज वो खांसी लाती है, इट क्रिएट्स खांसी, ये एनालैप्रिल। तो उसको बंद करके आइदर दूसरा एलोपैथी ड्रग यूज करो, या बंद करके टोटली होम्योपैथी रखो फॉर थोड़े दिन के लिए, खांसी कम हो गई फिर वापस चालू कर देना। अब एक छोटी सा ब्लॉक, कोई सजेस्ट कर दे, अरे एनालैप्रिल चालू है भैया, उसको वो बंद करना। अरे हाँ सर, ये इसीलिए तो हम अपने दवा को दोष देने के बदले, हम अपने आप को दोष देने के बदले, हम सब चीज करेक्ट था, आपकी ड्रग करेक्ट थी, आपकी पोटेंसी करेक्ट थी, आपका रिपीटेशन करेक्ट था, उसके बाद भी जस्ट बिकॉज दैट ब्लॉक वाज देयर बिकॉज ऑफ द ड्रग, यू कुड नॉट परफॉर्म गिव रिजल्ट्स। इसीलिए यहाँ पर दोनों सिस्टम्स का जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब ठीक है, सब लोग एमबीबीएस एमडी तो नहीं कर सकते ना, बट आपको नॉलेज तो रख सकते हो ना, इफ यू वांट टू एक्चुअली प्रैक्टिस ये। Very true. My next question is, sir, we all want to know a few tips you want to give to newcomers, to my friends. 5-6 टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हैव पैशन फॉर होम्योपैथी। जस्ट बिकॉज डिग्री आ गई है, बीएचएमएस में बहुत सारे मेरे पेशेंट्स है, सॉरी मेरे स्टूडेंट्स है, उन लोग बीएचएमएस करके आते तो सीखने के लिए, मतलब प्लीज मत कर, तुम्हारे पास डिग्री होना उसका मत नहीं। दिस इज लाइक मैरिज, शादी एक बार करना, जिससे प्यार करो उससे करो, हो गए बंद गए इसलिए जबरदस्ती कर रहे, ऐसा मत कर। यू हैव टू नॉट ओनली हैव टू अर्न, बट यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू डूइंग। डोंट प्रैक्टिस यार, देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ। सबसे पहले सही में अगर क्या बोलते हैं, आपको लगे ना कि मुझे होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है तो सीखो। अगर आपको अपने कॉलेज के दायरे से, कुएं के मेंढक के जैसे नहीं, अगर आपको कॉलेज के दायरे से बाहर जाना पड़े, 10 लोगों से सीखना पड़े, तो ये सीखो, उसमें हिचकिचाओ मत। बिकॉज वंस यू सिट ऑन द चेयर, दैट इज योर फाइनल अथॉरिटी। चेयर में बहुत कांटे होते हैं, जो चेयर आपको है वो बहुत कांटे वाली चेयर है, उस पर बैठने से पहले बी वेल प्रिपेयर्ड, बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। सेकेंड, सो बी पैशनेट अबाउट होम्योपैथी। सेकेंड, दूसरों को दोष मत दो, हमको कॉलेज में नहीं सिखाया, हमको नहीं सिखाया तो क्या हुआ, हम सीखना है, मुझे सीखना है ना, मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए ना, कहीं से भी फिल्टर वाटर मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रहे तो जो पानी मिले उसको छान के पी लूंगा मैं, बट प्यास तो मुझे चाहिए। तो इसलिए सीखो, देखो, ऑब्जर्व करो एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। डू नॉट डायरेक्टली टेक इन थिंग्स, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। अरे सर आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, दैट इज सिंपल। मैं भी इंसान हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूं कि करना था इसलिए किया, मैंने मेरे लिए किया, मैंने किसी और के लिए नहीं किया बेसिकली। सो डोंट, आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, होम्योपैथी कार्डियोलॉजिस्ट, ट्रेन फॉर दैट। आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, ट्रेन फॉर दैट एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। किसी और को धोखा नहीं दे सकते आप, अपने आप को ही धोखा देंगे। तो बी ट्रू टू योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन इमिटेट योर टीचर्स टू सम एक्सटेंट, कि भाई मेरे गुरु ने या मेरे टीचर ने ऐसा करते थे तो एक लिमिट तक मैं कर, बट मैं भी एक अलग इंसान हूं ना, तो डरो मत। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्रोवाइडेड यू आर अंडर प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ोगे तो सभी चीज ठीक है। फिर रिमेंबर ऑलवेज कि मैं बोलता हूं कि ये जो मेरी प्रैक्टिस है वो मेरे लिए नमाज है, मेरे लिए पूजा है, उसमें धोखा नहीं करना। पैसा तो एक बात है, पैसा तो आएगा ही आएगा, बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, पैसा कैसे भी कमा लेंगे, बट इसके अंदर धोखा नहीं करेंगे। इट मे बी स्लो फॉर सम पीपल, बट सब, एवरी डॉग हैज इट्स डे, सबका शाइनिंग टाइम आता है। डू नॉट लीव, डू नॉट फेल टू डिस्कस, एंड नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक जन से डिस्कशन नहीं हो, नेगेटिव दिया नहीं हो सकता तो दूसरे के पास जाओ, जो पॉजिटिव बोलता है उनके पास जाओ। लेकिन घूम फिर के ऑर्गेनॉन पे आ जाना, अपनी हद देख लेना कि वो सही है कि नहीं। ऑर्गेनॉन में है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये गलत है। बिकॉज रोज आपको नए नए गुरु मिलेंगे जो नई नई धारणाएं देते बैठेंगे, ठीक है, वो देते बैठे। आपको एज एन इंडिविजुअल
होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है एंड योर गाइड इज ऑर्गेनॉन, कीप ऑर्गेनॉन इन फ्रंट ऑफ यू एंड उसमें अगर बैठ जाए देन यू शुड प्रैक्टिस. यू आर एन इंडिविजुअल योरसेल्फ. पेशेंट को कैसे बात करना आपकी कला है. हो सकता है कि आपके गुरु आपके टीचर के अंदर वो कला नहीं जो आपके अंदर हो. सो टेक नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर, स्किल फ्रॉम एवरीवेयर, बट करो जैसा आपका, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल, यू आर टोटली यूनिक. आपके जैसा दूसरा को है ही नहीं. तो कंपेयर मत करना कि वो कैसा है वो कैसा है. आपका भी टाइम आने वाला है और आप चमकेंगे ही चमकेंगे, प्रोवाइडेड यू आर स्टेबल. छोड़ना ना मत, छोटी छोटी चीज के लिए छोड़ना मत. हो सकता है पैसे की तंगी बहुत बार आती है. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस, पीपल, माय क्लासमेट्स, एलोपैथिक क्लासमेट्स, they have gone, they are earning too much, but thing is I am satisfied. मैं उनसे कम अब अर्न नहीं कर रहा था. अब तो हुआ ना, किया मैंने जैसे भी हुआ, बट छोड़ा नहीं तो मेरे लिए तो स्विच करना बहुत इजी है. वो होम्योपैथी देंगी, डिग्री निकाल देंगे हम, बाकी है तो हमको एलो क्वालिफाइड तो पैसे तो कमा लेंगे. बट नहीं किया, यही करना था. So इसीलिए if you want homeopathy and degrees don't matter. Degrees are just license to practice. What matters is continuous learning. आज भी, today also, my father devotes 3 hours of learning. Just imagine, he is one of the senior most practitioners in homeopathy. 3 घंटे वो पढ़ते हैं, 2-3 घंटे हमको पढ़ना पड़ता है. पढ़ना ही पड़ता है डेली. उसके लिए अनडिस्कस करना पड़ता है. पढ़ने से भी कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लिटरली झगड़ा करते हैं कितनी बार तो, बट वो फायदे वाला झगड़ा होता है. कितनी बार टीचर स्टूडेंट्स मुझे सिखा के जाते हैं, सर ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या. यस, हो सकता है, मेरे गलत था. तो एट दिस स्टेज देयर इज नो इफ योर पेशेंट इज गुड एंड योर थॉट इज गुड, तो देन डोंट वरी. एंड याद रखना, जितना सीखा दूसरों को पढ़ाते रहो. ज्ञान बांटो. अगर आप बांटते हो ना तो आप अपने आप को हद में रखते हैं. अगर जब मैं कितने भी एंड आई कैन बोस्ट ऑफ एनीथिंग, बट अल्टीमेटली मुझे काटेगा अगर मैं, आई एम डूइंग रॉन्ग. मेरे प्रैक्टिस के अंदर लोग प्रैक्टिस कुछ करते हैं, बोलते कुछ है. अगर वो 1 बार 2 बार 5 बार हो सकता है, पर हर बार ऐसा हो तो फिर वो अपने जमीर को काटेगा. अगर जमीर हो तो ऐसा नहीं करना. जो कर रहे हैं हाँ ऐसे कर रहे सब, ये है. आपको पटता है तो ठीक है, हम हमारा ये बराबर है. सो आई थिंक दीज आर ऑल थिंग्स, टिप्स, बट थिंक करना होम्योपैथी प्रैक्टिस तभी जब आपको प्यार हो, और प्यार तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. दोनों नहीं. तो छोटी छोटी उम्र से प्रैक्टिस करना, छोटी छोटी सिम्टम्स प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ ट्रीटिंग. आपकी एक दवा से पेशेंट खुश हो गया, अरे बस कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारी डिग्री सफल हो गई. वो जो दुआ है उससे डिग्री सफल हो गई, और फिर ज्यादा नहीं चाहिए. सो यू आर यूनिक है. पूरे के पूरे लोग, सब लोग दुकान बंद करके बैठे थे 2 साल. हम अकेले थे डॉक्टर्स जो रात दिन काम कर रहे थे. सो ये दिस इज, डॉक्टर्स कभी खाली नहीं बैठ सकते, नेवर. सो चूज दिस प्रोफेशन. होम्योपैथी इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड स्पेशलाइजेशन होम्योपैथी इज द नीड ऑफ आवर. जो चीज में, बिकॉज नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पूरा के पूरा जनरलाइज होम्योपैथी प्रैक्टिस किया जाए, तो स्पेशलाइज. आंख के अंदर स्पेशलाइज करो, जो चाहिए डिजीज में स्पेशलाइज करो, एंड धीरे 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 कम अप. एंड इफ यू फील कि नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरी एक पेशेंट, मैं एक स्टूडेंट, तो 1998 की बात है, मेरे स्कूल में आई थी. सर आप तो होम्योपैथी कार्डियोलॉजी करते हैं, मुझे भी होम्योपैथी करना है, होम्योपैथी डेंटिस्ट्री. मैंने क्या डेंटिस्ट्री? हाँ बस होम्योपैथी डेंटिस्ट्री करना. ठीक है भैया, होम्योपैथी डेंटिस्ट्री करना है. मैं बोला मुझे डेंटिस्ट्री नहीं मालूम, मैं तो को थेराप्स दे सकता हूँ, 50, 15, 20, 30 ड्रग्स का थेराप्स. बट डेंटिस्ट के अंदर वो बाकी सब क्या करते होंगे अपने को आधा आइडिया नहीं. ठीक है, वो स्कूल करके गई, बहुत सॉलिड. नहीं सर डेंटिस्ट्री तो करूंगी. तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, मेरा डेंटिस्ट फ्रेंड है, मैंने एक काम करना है, मेरी स्टूडेंट है, उसको थोड़े दिन रखना अंडर प्रैक्टिस. तो वो अंडर प्रैक्टिस उसने रख. तब भी मुझे कुछ भरोसा नहीं था कि वो कुछ डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकेगी. हो गया. सेकेंड स्कूल में वापस आई, एंड समर विंटर स्कूल में आई थी, सेकेंड समर स्कूल में वापस आई. एंड अगेन सर अभी इतने तो हो गए, मैं ये, एंड शी स्टार्ट डेवलपिंग. आई सेड नहीं, दिस गर्ल इज रियली सीरियस. फिर देन शी सेड सर मेरे को वो आ गया, दांत साफ करना, दांत उखाड़ना आ गया.
अच्छा, आई सेड वेरी गुड, इतना तो आ गया, चलो डेंटिस्ट का। तब भी फिर दिस वाज इन 2001। अब नाउ मुझे क्या एक केस के लिए जाना था, तो शी वाज फ्रॉम गांव, छोटा सा गांव है उसका। तो अब गांव में तो क्या, मुझे तो लगता था कि कुछ भी करेंगे तो चल जाता है, ऐसा वाला हिसाब था। तो संडे का दिन था एंड आई हैड टू क्रॉस दैट गांव। तो वो गांव के अंदर ही मैं भूल गया था ये लड़की के बारे में, टोटली हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज हर डेंटिस्ट्री एंड दिस। एंड 2 साल बराबर उसने की एंड शी यूज्ड टू कीप इन टच। सर बताइए ना इसका क्या करो, कैंसर आया है, टूथ का कैंसर मिला है, टूथ का कैंसर मैं नहीं ठीक करता, पर लेकिन उसको देते रहता था हिंट्स वगैरह। देन व्हाट हैपेंड वाज, मैं वो गांव में अंदर शाम के 5 बजे थे, संडे का दिन था, एंड आई स्टॉप देयर। कार रुकी थी, चाय पीने के लिए रुके थे। अब वो रुके थे तो कोइंसिडेंटली वो सामने होम्योपैथिक डेंटल क्लिनिक, इतना बड़ा बोर्ड लिखा था। बाप रे, मैं बोला होम्योपैथिक डेंटल क्लिनिक, नाम नहीं, किसी का भी नाम नहीं था। एंड इतनी लंबी लाइन, फर्स्ट फ्लोर पे था, मेजरिन फ्लोर पे, और पूरा बाहर से लाइन थी, कम से कम 25-30 पेशेंट्स की लाइन। अब मेरे से थोड़ी रहा जाएगा, तो मैं गया ऊपर देखने को। अरे मैं बोले तो कविता, अरे सर आइए। उसके पास डेंटल चेयर थी, शी वाज डूइंग मास्क वास्क पहन के ये कर रही थी। मैं बोला, और सबको, मैं जाने से पहले आई चेक्ड एवरीवन, सबके पास होम्योपैथी अपनी ग्लोबल्स के बॉटल थी। वो मराठी में वो मैडम है ना, तो बोला अच्छा सब। मैं पूछा कि क्या देती है मैडम? बोले मैडम को गोली के अंदर एक दवा डाल के देती है। बोले एक ही डाल के देती है? अब वो क्या है कि इनक्विजिटिवनेस होती है। तो हाँ बोले, यू विल नॉट बिलीव, I saw the practice, I saluted, I said I should salute you, she is a married lady। बस एक ही डिटर्मिनेशन था, होम्योपैथी डेंटिस्ट करके बताई उसने। And for the next schools I invited her as a guest lecturer and she used to give homeopathy in dentistry पे lecture, even dentists can't give। मैं इतना beautiful, I was thrilled। This was one example, वैसे बहुत सारे examples हैं। So for people who, young people, always pursue your dream। और जो लोग आपको नकारते हैं, डोंट, उनको यही मत करो, मन का करो, अच्छे से करो। सो दैट इज वुंड हीलर। क्या है, मुझे तो है होम्योपैथी से क्या प्यार के नफरत। So there's a question, what makes your soul happy and what is that which you applies everywhere? नहीं, वो makes your soul happy, you're What working makes your soul happy? so that I make, मेरी जिंदगी किसी और के काम में तो आई बहुत, दैट्स मोर देन इनफ। हम लोग बहुत सारी चीज एक्सपेक्टेशन करते हैं लाइफ के अंदर, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम ये बनेंगे वो बनेंगे, वो सब होता नहीं है। सपने देखना हो गए तो बहुत अच्छा, बट सोल इज, इफ apart from your own self and your own family, if you can make others happy, khatam, forget about cure and all, they are very big concepts। Happy, I think that is what makes you happy। कोई हंसते हो गाय जाए आपके दर से, क्या और क्या चाहिए यार उनको? I think that's more than sufficient। At the end of the day, money does not matter, but it is how many people you have made happy, khatam, and that makes me happy, more than sufficient। I'm sorry, actually I'm making notes as well. अच्छा बिल्कुल। So eventually I also have to learn, being a host। There are so many questions, my God, I don't know whether टिप्स ऑफ होम्योपैथी की बात कर रहे थे। नहीं, don't restrict yourself to only specialization in human beings। होम्योपैथी इन एग्रीकल्चर, अरे भाई प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। दिस इज अ टोटल न्यू एरिया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ होम्योपैथी एग्रीकल्चर देख के जाते हैं, और उनके पास खुद के घर में बहुत सारी खेती है। कोई आम उगाता है, कोई सोयाबीन उगाता है, क्या क्या उगाता है मैं खुद को नहीं मालूम था तब। सर सोयाबीन उगाया है, उसमें कीड़े लग गए हैं, ये कीड़ा है, ये सिम्टम्स है, क्या करना? चलो धीरे धीरे चालू करो, एक काम कर, कैंथरिस डाल के देख। अच्छा ऐसे कैंथरिस कौन सा, 30 के 200 के 1 एम डाल के देख। स्प्रे करूँ क्या, कितने लीटर के अंदर कितना, वहां से चालू हुआ। एंड देन वो रिजल्ट लगा यार, अपन ने पेस्टिसाइड बचा सके और हमने क्या बोलते हैं सोयाबीन का क्रॉप पर अच्छा हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या पीछे तुम्हारे रोज है, वो रोज नहीं सर,
सर मेरे प्लांट्स में ना व्हाइट कलर का कीड़ा लग रहा है। इफ आई कुड, हाँ तो तुम्हारा कुछ बता रहा ना, अब वो व्हाइट कीड़ा जो है ना ये, अब वो टच मी नॉट है ना, ये टच मी नॉट है, लेकिन सब में यही लग रहा है सर, पता है सब में यही लग रहा है। मेरे बैंगन के पेड़ भी खराब हो रहे हैं। हाँ तो हमारा बैंगन का पेड़ खराब हो गया था ना, तो हमने कैलेंडुला यूज किया था सेम चीज के लिए। एंड सो इट टोटल सर सब में है व्हाइट। हाँ तो वो स्प्रे करो ना, कैलेंडुला 1 ml 10 ml स्प्रे करना एंड सी 7, अभी फोटोग्राफ लेके रखो एंड 7 days के बाद फोटोग्राफ देख लो। कितनी बार स्प्रे कर रहे हैं सर? 3 days 3 times सर देखिए सर सब में लगा हुआ है ये। हाँ तो तब हमारे यहाँ भी लगा था। अपने यहाँ बीमारी आती है तभी तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं। तो एग्रो होम्योपैथी, देन होम्योपैथ्स, लाइक मेनी पीपल डोंट गो अब्रॉड, किसी हमको इंडिया में नहीं रहना, बाहर जाना है, स्टिल होम्योपैथी के लिए बहुत स्कोप है। यू कैन डू अपना MBA आल्सो, यू कैन डू मास्टर्स इन हेल्थ। मास्टर्स हेल्थ के लिए BHM इज आल्सो क्वालिफिकेशन, यानी बेसिक क्वालिफिकेशन। वहाँ MOH की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एग्जाम दे दो, गल्फ में जाना है तो कतार जैसे कंट्रीज, मलेशिया, US, UK, they officially have homeopathy. मतलब वहाँ से you have to just give exam of the board and freely practice. वहाँ then you can practice specialization हो गया, agro homeopathy हो गया, veterinary homeopathy. Now another very good example, मेरा स्टूडेंट है, वो भी गांव में रहता है, एंड वो आया था, उसको बहुत ही नहीं टिपिकल नटरमोर है, वो एनिमल लवर है, वो एकदम ही हाइप मल्टीप्लाइड बाय 10 times। तो होम्योपैथी यहाँ हमेशा वही सब कुछ बेकार है होम्योपैथी, मतलब बेकार तो एक तो आया क्यों यहाँ पर सीखने को, और ऊपर से BHMS किया, वो बोले तो पिताजी ने कर दिया, मेरे को तो करना था, मेरे को इंजीनियर बनना था, ये करना था। बोला ठीक है छोड़ देना, फार्मेसी डाल दे, तेरे BHMS का डिग्री है ना, वो किसी को दे दे, पैसे कमा लेगा, एंड यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैसेज करने वाला सर, बोला ठीक है। तब वो दैट वाज वेरी अर्ली टाइम्स, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारा जो खेत है उसके गांव के पास ही है, तो वी हैड टू क्रॉस दैट गांव एंड हमारे खेत पे जाना पड़ता था। तो हम गए, तो मेरे को मालूम था कि वो गांव का है, तो मैं भी जा ही रहे तो उसके घर पे भी जाना चाहिए ना। सो वी वेंट देयर एंड उसका ये चालू हुआ, अरे आइए सर। उसने ही सडनली चेंज हिज लाइन, एंड इतने कैटल्स थे, अलग अलग लोग लेके आ रहे थे, फार्मर्स, और डिलीवरी करा रहा था, गाय की डिलीवरी करा रहा था, गाय की। सो क्या दूं, देखो बच्चा अटक गया, बोला बच्चा अटक में मेरे को नहीं बच्चे को क्या करना पड़ता था, गाय नहीं भैंसी का डिलीवरी करा रहा था वो। एंड मैडम थे, मतलब माय मदर वाज देयर, शी सेड के अब शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट या डिलीवरी करा थे, तो मैं बोला क्या देना पड़ता, पल्सिटला क्वालिफाई में कुछ है क्या ऐसा? तो नहीं, वो अटक गया था, समथिंग दैट बेबी वाज अटक, यूट्राइन इनर्शिया कुछ हो गया था। तो फिर यहाँ ओपियम दिया था, आई थिंक आई रिमेम्बर ओपियम। अब उसके पास ओपियम की पोटेंसी भी नहीं थी 10 ml, तो ओपियम 30 चालू किया भाई, जो कुछ नहीं, एंड दैट डिलीवर। ही इज सच अ फेमस प्रैक्टिशनर, एंड वो सब कैटल को ही देखता है, बकरी एंड कैटल, उसके गांव में वही जो रहता है ना, मुर्गी बकरी एंड वो ये। सो आई मीन वेटरनरी होम्योपैथी है। इनफैक्ट हम लोग मैं US गया था लीगा के कांग्रेस के अंदर, सो वन पार्ट वाज वेटरनरी होम्योपैथी, वन पार्ट वाज ह्यूमन होम्योपैथी, मतलब इतना वेस्ट के अंदर। एंड यू कैन प्रैक्टिस BHMS के साथ, अपने BHMS के साथ बाहर आप ऑस्ट्रेलिया में या इसमें वेटरनरी होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दैट हैज गॉट लॉट्स ऑफ स्कोप, बहुत स्कोप है। सो दिस इज समथिंग टू बी प्राउड अबाउट कि होम्योपैथी आप इतनी चीज में आप यूज कर सकते हो। Everybody is loving the session and they are admiring you like anything. They are saying there are regular followers of Adil Bolta Hai, and they watch you every Thursday. Thank you so much. Sir, whenever we hear your lectures, your energy literally is very contagious. We get charged. Thank you so much. I think that a teacher can only do that. अगर टीचर बहुत बार क्या नॉलेज तो ऊपर बाउंसर जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन हो गया तो अल्टीमेटली आप खुद सीख सकते हैं, किसी और को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
Sir, I'll ask one last question. You mentioned about your textbook of homeopathic cardiology. From where we can get that book? Because I have, 10 to 15 queries for the same I question. know. मेरा बन गया है, मेरे को सिर्फ पब्लिश करना है. I think by next month it will be published and then वो अवेलेबल है, Amazon पे अवेलेबल है और वो Flipkart पे भी अवेलेबल है. Next month I'll be publishing. मतलब next month से? हाँ, next month से. Next month से. हाँ. Okay. Thank you so much, sir. I mean, I don't have words. I think it's one of the finest guest talk. Thank you And it so took much. me 31 episodes to reach you and to get your appointment for the session. And we really feel blessed. And it was worth waiting for 2 years to call you on. And everybody, everybody was texting me, मैम आदिल सर को बुलाओ ना, मैम आदिल सर को बुलाओ ना. मैम क्या कर सकती है, मैम मैसेज कर सकती है, मैम मैसेज के रिप्लाई का वेट कर सकती है. एंड वी ऑल नो दैट यू आर सो मच caught up and occupied because traveling across the Maharashtra for a clinic is not at all easy job. मैं नहीं कर सकती. I'll give up in couple of months or couple of years. I'll give up कि मैं बार बार बॉम्बे, नासिक, नागपुर ऐसा नहीं कर सकती. So really sir, you're a true inspiration. Passion रहता है. And God has been kind. हाँ सर. Always been kind. तो आई वुड लाइक कि सर आप मुझे सेशन के बाद अगर किसी को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना हो स्कूल के लिए डिटेल्स, वो प्लीज आप मुझे शेयर कर दें बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस. सो रादर आंसरिंग हियर एंड इट विल गेट वैनिश्ड, आई रादर पोस्ट ऑन माय स्टोरी. तो आप लोगों को अगर सर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो, सर के स्कूल के बारे में जानकारी लेनी हो, सो आई विल बी पोस्टिंग द व्हाट्सएप नंबर सो यू कैन आस्क देयर. इज दैट फाइन सर? Yes, perfect. एंड सर एक प्रॉमिस जो मैं सभी गेस्ट से लेती हूँ, आप दोबारा गेस्ट टॉक पर आएंगे इफ यू हैव एंजॉयड एंड इफ यू रियली फेल्ट वेल कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ अस, बिकॉज इस पे यूजुअली वी आर वेरी वेरी लिटिल होम्योपैथ्स, ईदर इंटर्न्स और वी हैव जस्ट स्टार्टेड और वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम और स्ट्रगल इन सेटिंग अप द प्रैक्टिस. यही तो टाइम है, इसको तो नहीं छोड़ना है. इफ यू डोंट हैव दिस हार्ड टाइम you can never be a successful practitioner. I had to wait for 7 months khali without patient. A married man had to wait for 7 months because एक ही चीज था, होम्योपैथी कार्डियोलॉजी करने का, तो और पेशेंट ही नहीं आते थे कार्डियोलॉजी के. तो हम लोग वेट हुए ना, तो करो तुम भी वेट करो, कुछ नहीं होता, छोड़ना मत बस. So wish you all the best and keep on seeing you again on Insta or possibly whenever time मिलता है. अगर रियलिटी में पर्सनल में नागपुर एंड मुंबई बहुत अवेलेबल, बैंगलोर में अवेलेबल. पहले तो पूरे इंडिया में जाता था, सब जगह क्लिनिक थी मेरी, और अब 2 साल से तो बंदिश है. तो लेट्स सी. सर वो कैलेंडुला की पोटेंसी 1 m और कितने ड्रॉप कितने लीटर में, ये भी पूछना है मुझे. नहीं वो तो छोटा है ना तुम्हारा स्प्रे. हाँ सर स्प्रे मेरा बड़ा है सर. हाँ तो स्प्रे उस फुल बॉटल के अंदर 10 ml डालना पड़ेगा. 10 ml. 10 ml. हाँ, और दिन में TDS 1 ml. हाँ 1 ml. I'll post before and after photos and I'll definitely tag you for the result. देखते हैं. Thank you so much sir. होना चाहिए. Thank you so much. होगा सर, होगा जरूर होगा. Thank you so much for being here and thank you so much audience everyone. आज मुझे ऐसा लगता है the motive of making Homeopathy Heals page and learning it is successful because you are here. Thank you. So that's why I called you, Big B of Homeopathy, that you came here and I'm so much overwhelmed, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.